Hello, children, how are you? I hope that you have understood this first part of the chapter number 13, A Hero from your book, My English Garden. So, children, we all know that what we need to do in this activity, we need to find out some expressions, some sentences, some words for bravery. Bravery को describe करने के लिए either it can be sentence or a word, right? And now I asked you in the first video to read out the two stanzas, two paragraphs which are here over screen on a mobile phone. And then what I asked you, that send me on my personal number, right? Okay, so today we will have the explanation part and then we'll know the tough words or the new words introduced here in these two paragraphs. So first let me just read for you. Father looked over the newspaper. He was reading under the hall lamp and said, saw me. Listen to this. Up now, the background of this chapter or this paragraph is father and Swami, and father and son are sitting under the hall, in the hall under the lamp, right? So children, lamp का introduction और lamp को इस तरीके से बताया गया है because that time there was no light, वहाँ पर light नहीं थी, तो lamp में उसके father, स्वामी के father क्या कर रहे हैं? He was reading, he was reading newspaper and after reading newspaper he got surprised and he asked a question to स्वामी. स्वामी को वो न्यूज़ बताते हुए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? So let's see what was the news he was reading about. News is to hand of bravery of a village lad who, while returning home by the jungle path, came face to face with a tiger. अब उसके फादर कहते हैं, Swami's father said to Swami that this news is about a bravery of a lad. Lad का मतलब होता है boy, right? So bravery about of a boy who was returning home, while passing by the jungle. एक लड़का जो घर लौट रहा था जंगल से गुजरता हुआ, he met a tiger face to face. उसको एक टाइगर जंगल में मिल जाता है, उसके सामने आके खड़ा हो जाता है. आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, पूरे न्यूज़ को पढ़ने के बाद जो स्वामी के फादर होते हैं, ही आस्क्ड स्वामी, he said, what do you say to that? What is your opinion about this incident which happened with this boy and tiger? वो कहते हैं कि तुम्हारी क्या राय है, what do you think, तुम क्या सोचते हो इस इंसिडेंट के बारे में? अब स्वामी क्या बोलता है? स्वामी ने कहा, स्वामी said, I think he must have been a very strong and grown up person. वो कहता है, I don't think he is a boy. He must have been an old person and a grown up person. He could not be a boy. वो कहता है कि वो जो बच्चा है वो बच्चा नहीं है, वो कोई पर्सन होगा जो वेल एजड होगा, अच्छा खासा उम्रदार होगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा. वो बच्चा हो ही नहीं सकता है. वो उनसे कहता है अपने फादर से, बच्चा हो ही नहीं सकता है. हाउ कुड अ बॉय फाइट अ टाइगर? वह कहता है एक बच्चा कैसे लड़ाई कर लेगा? हाउ इज़ इट पॉसिबल फॉर अ बॉय टू फाइट विद अ टाइगर ऑल अलोन इन द जंगल वेयर नो बडी इज़ देयर टू हेल्प हिम आउट? वो कैसे इतने बड़े जंगल में एक टाइगर से फाइट कर सकता है जो कि खुद अकेला हो और एक बच्चा हो और वहाँ पर उसकी मदद के लिए भी कोई ना हो? हाउ इज़ इट पॉसिबल? वो अपने फादर से पूछता है. सो लेट्स सी आगे क्या होता है. You think you are wiser than the newspaper? Father sneered. अब जो उसके फादर होते हैं वो कहते हैं कि don't act smart. You think that you are superior or you are
मोर इंटेलिजेंट देन द न्यूज़पेपर एडिटर्स, जो न्यूज़पेपर लिखते हैं उनसे ज़्यादा तुम इंटेलिजेंट हो, महान हो, वाइजर हो, बुद्धिमान हो। फादर स्नीयर्ड, स्नीयर्ड का मतलब है स्माइल और स्पोक इन अ मॉकिंग मैनर, वो हंसते हुए बोलते हैं। सो ऑफ कोर्स दिस हैपन्स विद अस ऑल्सो, कि अगर हम ऐसी बात कर लें जो कि बड़ों की बातों से भी ज़्यादा मैच्योर्ड लगे, है ना, तो हमारे बड़े भी कहते हैं कि तुम क्या अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हो इन बड़े बुज़ुर्गों से, हम बड़े बुज़ुर्गों से, ठीक है। तो हियर द फादर ऑफ स्वामी ऑल्सो सेड द पास्ड कॉमेंट मॉकिंग एट स्वामी, उस पर हंसते हुए कहा कि यू थिंक यू आर मोर इंटेलिजेंट देन द न्यूज़पेपर, क्या तुम अपने आप को न्यूज़पेपर वालों से ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हो। हाउ कैन इट बी फादर, सपोज आई हैव ऑल द करेज, वॉट कैन आई डू इफ़ अ टाइगर शुड अटैक मी। वो कहता है कि ओके फादर, आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ वाइजर देन द न्यूज़पेपर, मैं मानता हूँ कि मैं उनसे इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं वाइजर नहीं हूँ, लेकिन यू टेल मी, वो कहता है अब आप ही बताओ, हाउ कैन इट बी, वो कैसे पॉसिबल हो सकता है फादर। सपोज आई एम ऑल स्ट्रॉन्ग, आई एम वेरी मच स्ट्रॉन्ग और वेरी मच करेजियस, but suddenly if a tiger comes before me, how could I face the tiger if it attacks us, या if it attacks me or you। अगर एक टाइगर, नो मैटर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बहुत बलशाली हो, नो खली के जैसे बहुत बड़े शरीर वाले हों, लेकिन अगर अचानक से कोई टाइगर आ जाएगा तो हम उसको कैसे रिएक्ट करेंगे, हम उसको कैसे हरा सकते हैं अगर उसने मुझे या हम पे अटैक कर दिया। वो अपने फादर से पूछता है ना, यू आंसर। लीव अलोन स्ट्रेंथ, कैन यू प्रूव यू हैव करेज, लेट मी सी इफ़ यू कैन स्लीप अलोन टुनाइट इन माई ऑफिस रूम। अब उसके फादर भी वेरी क्लेवर, एज यू मस्ट हैव सीन, जो स्वामी है उसका आंसर भी बहुत ज़्यादा क्लेवरी से भरा हुआ था। तो उसके फादर सोचे अगर बच्चा क्लेवर है तो उसके फादर तो बहुत ज़्यादा क्लेवर होंगे। अब नाउ एक्चुअली हिज फादर वॉन्ट्स हिम टू प्रूव हिज करेज, उसके फादर चाह रहे थे कि वो उनका बच्चा अपना साहस, अपना करेज उनके सामने प्रूव करे, साबित करे कि यस ही इज़ ऑल्सो करेजियस, वो भी बहुत ज़्यादा साहसी है। सो हिज स्वामीज फादर गेव हिम अ टास्क टू स्पेंड नाइट ऑल अलोन इन हिज ऑफिस रूम। अब उसके फादर कहते हैं उससे कि बिकॉज सी आई टोल्ड यू देयर वॉज नो लाइट, वहाँ पे लाइट नहीं है। नाउ हिज फादर सेड टू हिम कि तुम आज रात, मैं मान लूँगा, आई वुड अग्री टू योर पॉइंट, मैं उसको मान लूँगा अगर तुम प्रूव कर दो कि तुम बहुत ज़्यादा साहसी हो, इंटेलिजेंट हो, बाय स्टेइंग इन माई ऑफिस रूम, मेरे रूम में अगर तुम रुक जाओ एक रात के लिए, पूरी रात तुम अकेले रहना वहाँ रूम में, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड विद स्वामी। कहते हैं लीव ऑल स्ट्रेंथ, वो कहते हैं चलो डोंट टॉक अबाउट दिस इशू, इस बारे में बात नहीं करते, लीव ऑल अलोन स्ट्रेंथ, सारी ताकतों को भी छोड़ दो। कैन यू प्रूव योर करेज, क्या तुम अपना साहस प्रूव कर सकते हो। लेट मी सी, आई जस्ट वॉन्ट टू सी हाउ मच करेजियस यू आर। व्हेन यू स्पेंड अ नाइट इन माई ऑफिस रूम आई विल अग्री विद यू, मैं तुमको मान लूँगा, मैं तुमसे सहमत हो जाऊँगा। So children, I am going to wind up my video here with few questions. So children, what was the conversation in between father and Swami? क्या conversation था उसके father और स्वामी के बीच में, यानी उस बच्चे के बीच में। Now the next question is that how did Swami react to his father's news? उसके फादर की जो न्यूज़ थी उस पर क्या वो कैसा रिएक्शन देता है, उसका क्या रिएक्शन था।
Question number 3, that what was the task given by Swami's father? उसके फादर ने क्या टास्क दिया था? Question number 4, what did Swami's father want to prove him? उसके फादर क्या चाहते थे उससे प्रूव करवाना, क्या चाहते थे कि स्वामी क्या प्रूव कर दे. So these are the 4 questions which you need to answer once you are through with the video. And if you are able to answer, definitely you have understood paragraphs, right? Children, saying this, I would say thank you. Keep watching, keep learning every time.